موسیٰ اور beloved prophet ہے، میرے خدا نے 50 کو 5 کر دیا اپنے کرم سے، اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اور کم کروں. حضرت توجہ چاہوں گا، سرکار نے کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اور کم کروں. جو اردو جانتے ہیں ان کی توجہ پلیز. میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اور کم کروں، یعنی نماز کی فرضیت وہی ٹھہر گئی جہاں غیرت مصطفیٰ ٹھہر گئی. تو حد غیرت کا نام حد فرضیت ہے. کون لے رہا تھا؟ کون دیتے میں دکھ رہا تھا؟ کون دیکھ رہا تھا؟ کون جلوے تھے کس کے؟ لامحدود کے لامحدود جلوے. جلووں کے اجتہام نے حیران بنا دیا. میں ہو گیا ہوں بزم حسینہ کا ناظرینی، جلووں کے اجتہام نے حیران بنا دیا. پیغمبر نے مسرتوں میں، دیدار میں، تجلی ربانی کے مشاہدے میں، ذات کبریا کو دیکھنے میں محو دیدار ہے جو ملا چل لیے، مگر موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے کم ہو رہی ہے، وسیلے سے کم ہو رہی ہے. اب جو لوگ وسیلے کے قائل نہیں ہیں 50 وقت کی پڑھائیں، جنہیں رسول کی ضرورت نہیں، کلیم کی ضرورت نہیں، وہ اللہ کی دی پڑھائیں. رسول کی گھٹوائی ہوئی کیوں پڑھتے ہیں؟ رسول نے 50 کو 5 کروایا، اللہ نے تو 50 ہی دیا تھا. تم بہت اللہ اللہ کرتے ہو تو اللہ والی پڑھو، یہ رسول والی کیوں پڑھ رہے ہو؟ اللہ نے تو 50 ٹائم کا دیا تھا. میرے رسول نے کہا اللہ کم کر دیا، اللہ نے 45 کیا 45. پھر سرکار اور کم کر دیا. پلیز میک اٹ لیس اینڈ لیسر، کم سے کم امت ہو جائے بے غم، دم میں رہے دم، امت کو نہ رہے کوئی غم. سرکار تھوڑا سا اور کم، اور تھوڑا سا کم. وہ 45 سے ہو گیا 40 چینج انٹو 35 سے 30 سے 25 چینج انٹو 20 سے 15 سے 10. اب حضرت موسیٰ کہ یا رسول اللہ 10 بھی زیادہ ہے، بہت سے ہو جائیں گے بے بس، کم کرائیے، یہ 10 بھی کافی ہے. حضور نے امت کا خیال کیا، 10 سے ہو گیا 5. پھر موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ یہ 5 بھی قیامت تک تو سب نہیں پڑے گی، اس کو بھی تھوڑا کم کرائیے، اس کو بھی کم کرائیے. قیامت تک کی سوچیے نہ کتنے لوزر پیدا ہوں گے. سب سکسر ہی تو نہیں ہوں گے، کاج لوزر بھی ہوں گے. بیٹنگ کریں گے رن نہیں بنے گا، اسے بھی بیٹسمین ہوں گے. تو سرکار اور کم کرائیے. میں تمہاری سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، ان کی انٹینشن یہ ہے کہ امت کو اور سہولت ہو جائے. حضرت موسیٰ یہی چاہتے ہیں کہ امت کو سہولت ہو جائے اور کم کرائیے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سنو. حضور پر نور شافعی یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے موسیٰ اور beloved prophet ہے، میرے خدا نے 50 کو 5 کر دیا اپنے کرم سے، اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اور کم کروں. حضرت توجہ چاہوں گا، سرکار نے کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اور کم کروں. جو اردو جانتے ہیں ان کی توجہ پلیز. میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اور کم کراؤں، یعنی نماز کی فرضیت وہی ٹھہر گئی جہاں غیرت مصطفیٰ ٹھہر گئی. تو حد غیرت کا نام حد فرضیت ہے. اور دوسرا تم سنو کہ میرا رسول اتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے کہ جب نماز کی فرضیت کو گھٹوا سکتا ہے تو امت کی معصیت کو کیوں نہیں مٹوا سکتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جہاں مصطفیٰ کی مرضی ٹھہر جاتی ہے، یعنی جو نبی کی طبیعت ہے، جو نبی کی طبیعت ہے وہی شریعت ہے، وہی شریعت ہے، وہی شریعت. اس پر ایک صاحب بولے کہ اس واقعے سے پتہ چلتا رسول کو علم غیب نہیں ہے. میں نے کہا یہ بھائی بات نماز کے کم کرانے کی چل رہی، اس کا علم غیب سے کیا تعلق ہے؟ ارے بھائی کنسیشن کا پروفیسی سے کیا لینا دینا؟ کنسیشن خدا سے کرایا جا رہا ہے تو پروفیسی سے کیا کون سا ٹینشن ہے؟ بولے آئے میں کہا تو ہی بتا کیا ہے. رسول کو اگر علم غیب ہوتا تو رسول کہتے ہیں اللہ یہ 50 تو دینے والا ہے نہیں، تو دے گا 5، تو 50 کو 5 ڈائریکٹ کر دے. میرا علم غیب کہتا ہے کہ میں 5 ہی لے جاؤں گا.
मगर क्योंकि रसूल को इल्म गैब तो था नहीं, इसीलिए रसूल गए, उनको पता तो था नहीं कितनी मरतबा आना है। कभी 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15। रसूल को मालूम ही नहीं था कि कितनी जाएगी। इल्म गैब होता तो 5 लेके आ जाते। एक सुन्नी ने सुना, भाई ऐसी स्टाइल से ना बात करो, वरना कोई बदतमीज और गुस्ताखे खुदा, मुनकिरे खुदा, कोई नास्तिक खड़ा होकर बोलेगा इस वाक़े से साबित होता है कि अल्लाह को इल्म गैब नहीं है। बोले क्यों? तो अगर अल्लाह को इल्म गैब होता तो जैसे ही रसूल आए थे 50 को 5 कर देता, उसको भी नहीं मालूम था कितनी मरतबा आएंगे। कभी 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 20, 20 से 25, 25 से 10, उसको भी नहीं मालूम कितनी मरतबा आएंगे। मालूम होता तो पहले ही 50 को 5 न दे देगा। तब वो बोला धीरे धीरे घटाना अल्लाह की हिकमत, अल्लाह की हिकमत। तब सुन्नी बोला धीरे धीरे घटवाना नबी की मसलेहात, नबी की मसलेहात। मैं हूँ खुदा का बंदा, अल्लाह की हिकमत भी बताऊंगा, और हूँ अपने नबी का उम्मती, नबी की मसलेहत भी बताऊंगा। क्यों धीरे धीरे रब ने घटाया और क्यों महबूबे रब ने धीरे धीरे घटवाया, उनकी हिकमत क्या है, इनकी मसलेहत क्या है। मैं उनका बंदा हूँ, हिकमत भी बताऊंगा, इनका उम्मती और गुलाम हूँ, मसलेहत भी बताऊंगा। अगर अल्लाह की हिकमत समझना है तो मूसा की नीयत समझो। अगर अल्लाह की हिकमत समझना है तो पहले कलीमुल्लाह की नीयत समझो। हजरत मूसा से हाथ जोड़ के मैं बोलता हूँ, सरकार वाई आर यू इंटरेस्टेड इन द मैटर ऑफ मुस्लिम उम्मा। मेरा रसूल 50 ले जाए, 60 ले जाए, 70 ले जाए, इसराइलियों के लिए थोड़ी ले जा रहा है कि आपने दिलचस्पी ली। आपने कहा को सरकार दिलचस्पी ली तो जवाब मिला तो 2 वजह। एक तो मुझे रसूल से इतनी मोहब्बत है कि मुझे इनकी उम्मत से भी मोहब्बत। मैं नहीं चाहता कि इनकी उम्मत पे बोझ हो। एक तो ये लव टू दी मुस्लिम उम्मा, और दूसरी वजह ये है तू है बेवकूफ, लगता है तूने इश्क नहीं किया। तू है बेवकूफ, लगता है तूने कभी किसी से मोहब्बत नहीं किया। यू डोंट नो द टेस्ट, रियल टेस्ट ऑफ लव। तू ऐसे ही लव बोलता है जैसे लोग कपड़े पे लिख के आई लव यू। स्पिरिट आई नहीं, जज्बा आई नहीं। आई लव कोका कोला, आई लव केक, आई लव पेन, आई लव पेपर। ये लव बोलते बोलते लव की मीनिंग खत्म हो गई, सिर्फ रियल ही जुबान पर रह गया। अरे प्यार, सच्चा प्यार बेलाल से पूछो, सच्ची मोहब्बत अम्मार से पूछो। तो ऐसा लगता है कि तेरे को मोहब्बत नहीं। देख, मोहब्बत होती ना तो तू समझता। अब मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब सुनो। मैंने नमाज को कम करवाया, तो उम्मते रसूल को फायदा होगा, दूसरा मेरा भी फायदा है। सरकार आपका क्या फायदा? अरे बेवकूफ, जब नमाज कम कराएंगे तो किससे कराएंगे? अल्लाह से। तो जब रसूल नमाज को कम कराने जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? तो अल्लाह के कुर्ब में पहुंचेंगे तो अल्लाह से कम कराएंगे। तो अल्लाह जब कम करेगा तो ये रसूल देखेंगे किसको? अल्लाह को। और जब देख करके आएंगे मुझे बताएंगे कि कम हो गई, तो मैं देखूंगा इनकी आंखों को, मैं देखूंगा इनकी आंखों को, क्योंकि मैंने डायरेक्ट खुदा को नहीं देखा। मैं मुस्तफा की आंखों में तैरती हुई तजल्लियों को देखूंगा, चश्मे मुस्तफा में तजल्लियात रब्बानी को देखूंगा। मैं कलीम हूँ, कलीम। मैंने इससे पहले तूर पे भी देखा था, तो वो जात की तजल्ली न थी, वो सिफत की तजल्ली थी, और वो भी डायरेक्ट नहीं देखा था, तूर के वास्ते से देखा था। ये तो मेरी किस्मत है, पहले तूर के वास्ते से देखा है, अब नूर के वास्ते से देख रहा हूं। अब अल्लाह की हिकमत यह है कि अगर मैंने 50 को 5 कर दिया तो मूसा एक बार देखेंगे। और मूसा आशिक है, मूसा तालिब है, मूसा में जज्बा है, मूसा का जज्बा पाकीज़ा है, मूसा का शौक दीद मोतबर है, मूसा में ज़ौक़ नज़ारा मुस्तनद है। लिहाजा ज़ौक़ नज़ारा और तलब दीद और ज़ौक़ मुशाहिदा और दीदार और दर्शन का जज्बा मूसा में जब कामिल है
तो मैं 50 को 5 नहीं करूंगा, 50 को 5 कर दूंगा तो मेरा कलीम एक ही बार देख पाएगा। लो ए मूसा, मैं 50 को 45 करता हूँ, देख ले। 45 से 40 किया, फिर देख ले। 40 से 35 किया, फिर देख ले। 35 से 30 किया, फिर देख ले। 30 से 25 हुआ, फिर देख ले। 25 से 20 किया, फिर देख ले। 20 से 15 किया, फिर देख ले। 15 से 10 किया, फिर देख ले। 10 से 5 किया, फिर देख ले। अरे वो लौटे नहीं तो मैं फिर दिखा देता। मेरे क्योंकि मेरी मसीयत वही है जो महबूब की तबीयत है, जो उनकी तबीयत है वही मेरी मसीयत है। तो ये है खुदा की हिकमत धीरे धीरे घटाने में। और मेरे नबी की मसलहत सुनो, मेरे नबी की मसलहत ये है कि मेरे नबी ने जब मेराज का सफर किया था तो जिब्रील आए थे, जो जिब्रील आए थे, बुराक आया था। जब खुदा ने अपने कुर्ब में बुलाना चाहा और कुर्ब खास में बुलाना चाहा तो जिब्रील को भेजा जा रहा है, बुराक को भेजा जा रहा है, रफ भी आ रहा है। तो कहीं मेरा कोई उम्मती ये न समझ ले कि खुदा तक जाने के लिए मैं जिब्रील का मुहताज हूँ, मैं बुराक का मुहताज हूँ, मैं रफ का मुहताज हूँ। कहीं मेरा उम्मती मुझे मजबूर न समझ ले। इसलिए लाओ मैं अपनी उम्मतियों की के इत्मीनान के लिए ये दिखा दूं कि मेरे गुलामों देखो, एक बार मुझे खुदा ले गया, एक बार मुझे खुदा ले गया। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। एक बार मुझे खुदा ले गया, 9 बार मैं खुद जा रहा हूँ, खुद जा रहा हूँ, खुद जा रहा हूँ। खुदा में ले जाने की कुदरत है तो मुझ में जाने की सलाहियत है। मेरे नबी की हिकमत है। और एक जुमला और देना चाहता हूँ, सुनो सुनो। जब मुस्तफा को खुदा ले गया, जब मुस्तफा को खुदा ले गया तो कुर्बत के लिए, बशारत के लिए, निशानियां दिखाने के लिए, बरकत के लिए, अजमत के लिए, रिफात के लिए खुदा ले गया। तो कुर्बत के लिए गए, बरकत के लिए गए, अजमत के लिए गए, रिफात के लिए गए। मगर 9 बार जब मुस्तफा मूसा के कहने पर गए तो सिर्फ उम्मत के लिए गए, उम्मत के लिए गए, उम्मत के लिए गए। वो पैगंबर जो खुदा के दीदार की माहौल में, जो दीदार इलाही की फजाओं में हमें न भूला हो, वो नबी जो अपनी मसरतों में हमें न भूले, वो नबी जो मेराज की खुशी में हमको न भूला, वो नबी जो मूसा के सामने हमें न भूला, वो नबी जो काबा कौसैन की मंजिलों में हमें न भूला, वो नबी जो मारुला मक्का की हदों में हमें नहीं भूला। हम भी इतने बेगैरत नहीं है, हम भी कसम खाते हैं कि अगर हमारी रगों में किसी मुसलमान बाप का खून है, अगर हमारी रगों में किसी मुसलमान औरत का दूध है, तो ये रसूल हम भी कसम खाते हैं कि हम भी बरतानिया में तुम्हें नहीं भूलेंगे, हम तुम्हें नहीं भूलेंगे। ये जिंदगी मुस्तफा का सदका है, ये सांसें नबी का सदका है, ये जिस्म नबी का सदका है। पंजाब मिला नबी के सदके में, सिंध मिला नबी के सदके में, आजाद कश्मीर मिला नबी के सदके में, पाकिस्तान का वजूद मिला नबी के सदके में, हिंदुस्तान का गरीब नवाज नबी के सदके में, मखदूम अशरफ नबी के सदके में, महबूब इलाही नबी के सदके में। हमारा नबी हमें अबू बकर दे रहा है, हमें उमर दे रहा है, हमें उस्मान दिया है, हमें अली दिया है, हमें वली दिया है। जिस नबी ने हमें मुर्शिद दिया, हमें हादी दिया, हमें रहबर दिया, हमें शरीयत दिया, हमें तरीकत दिया, हमें कादरियत मिली, हमें चिश्तियत मिली, हमें नक्शबंदियत मिली। एक पैगंबर, अगर आप हमारे लिए अपने घर को लुटाना चाहते हैं तो तुम्हारे नाम पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का सुन्नी मुसलमान अपनी जान देना भी जानता है, अपनी नजरें कटाना भी जानता है। पैगंबर की अजमत का चिराग हम बरतानिया के अंधेरे में जलाएंगे, नबी की मोहब्बत का चिराग हम इन गंदे माहौल में जलाएंगे। हम अपने बच्चों के सीने में बिलाल की गर्मी देंगे, सलमान का सोच देंगे, अली अकबर की जवानी की भीड़ देंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैठ जाओ, ये जज्बे की बात है, ये दिल
میں اتر جانے کی بات ہے. یہ ہاشمی کی آگ ہے جس کے سینے میں لگ گئی ہے. یہ مصطفیٰ کی شمع ہے جو دلوں میں لو پیدا کر رہی ہے. آج ہم نے بھی طے کر لیا ہے کہ اگر محمد بن قاسم ہم کو کلمہ پڑھانا جانتا ہے تو برطانیہ میں ہم اس کلمے کو بچانا جانتے ہیں. جو جشری علماء اہل سنت جب ایسا دل ہوگا, جب ایسا سینہ ہوگا, وہ سینہ پھر رسول کی محبت کا مدینہ ہوگا, اور جب وہ مدینہ ہوگا تو سجدہ سجدہ ہوگا, زکات زکات ہوگی, روزہ روزہ ہوگا, حج حج ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.